Okay, Hare Krishna, everybody, and I welcome you for this today's session. Today's session is very powerful session, which will help you discover the ultimate genius behind this universe. Or the name we gave this to this session is the existence of God. Does God really exist? And how it helps or how it matters for a counselor to know whether God exists or not. Okay, so a very important point. So previously we have learned about the body, the subtle body, the body which is made up of earth, air, fire, water, ether. Then we learned about subtle body, that is mind. Okay, mind, intelligence, and senses. We learned about that, and then we learned about the soul, which is the driver of this bodily car. Then we saw how whatever actions the soul performs, he gets reaction. Now, how it connects to this topic? There has to be somebody who remembers what activities soul had done and what effects he should get. Okay, somebody who has made the laws of this world, somebody who has created this world, everything, like all these things. So that brings us to the understanding of having somebody ultimate creator of this world. And today we will be scientifically also discussing about it, spiritually, scientifically, and somehow we will come to the conclusion that the world indeed has some creator. Okay, so just uh, forget that you are into a seminar and you are attending a session. Just think about the world. Okay, just you can close your eyes and you can think about the world, how clouds are there, clouds they shower. Okay, how sun is shining, how grains are growing, how flowers are blooming, all different kind of flowers. Okay, then how fruits are ripening, how mountains are full of minerals. Okay, so all these things are happening. But then if we think about ourselves, who we are, so we understand that we are just observers. These things are happening, ये चीजें हो रही है, मगर हम कौन है? We are just observers. ये सारी चीजें अपने आप हो रही है. सन कम्स ईस्ट से आता है और वेस्ट में जाके चला जाता है ना, राइज होता है और डूब जाता है. तो ये जो हो रहा है हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं. वी आर नॉट मेकिंग द सनसेट, वी आर नॉट ब्रिंगिंग रेन्स, वी आर नॉट राइपनिंग द फ्रूट्स. हम नहीं कर रहे. व्हाट अ फार्मर कैन डू इज ही कैन पुट द सीड. उसके बाद क्या कर सकता है वो, है ना? उसके बाद पानी, या वो सीड ग्रो हो रहा है नहीं. सो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन समबडी. विदाउट सनशाइन हम देखेंगे हम नहीं जी पाएंगे. जो ओशियन का वाटर है, इट गोज अप, it causes, it gets converted into clouds, we say, and those clouds they come, they pour water, and that water we are surviving on it. Okay, so there are grains, fruits, cereals, spices. How can anyone survive without all of these things? Okay, there are so many different kind of elements, like we say silver, gold, and all these metals. We are surviving on all these metals. Our, our mobiles are made up of metals and different kind of minerals or materials, elements, you can say. Everything, our home, everything that we are surviving, so all these things, so we have not created them. ये समझना बहुत जरूरी है. हम, मैंने उसको क्रिएट नहीं किया, ये पहले से क्रिएटेड है. somebody has created it. So now none of it is created by me. Okay, seasons है, चेंज हो रहे हैं, फ्रूट्स राइपन हो रहे हैं. हमें सोचना चाहिए कैसे पॉसिबल है. एक, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक एक स्वामी है. Okay, he takes his disciples, to a place. There they see there are two houses, दो घर है. एक घर है जहां पर क्या है, पूरा कचरा पड़ा हुआ है, सब अनक्लीन है, जाले लगे हुए हैं. घर के बाहर का जो गार्डन है वहां भी सारे, कोई भी पेड़ उगे हैं उसमें भी साफ सफाई नहीं है. ओके, और पूरा जो अंदर जाने का, जो घर पे जाने का जो रास्ता है, पूरा धूल है, सब कुछ. इट्स लाइक हाउस अपीयर टू बी टोटली डेड हाउस. लाइट नहीं है, कुछ नहीं. और दूसरा जो घर है, द सेकंड हाउस वाज हैविंग, इट वाज वेरी क्लीन. लाइट लगा हुआ था अंदर. जो बाहर से जो लाइट्स है, जो गेट के ऊपर लाइट्स है, वो लगे थे. और
गार्डन प्रॉपरली ट्रिम्ड था, सब कुछ। सो ये दो हाउस जो थे, दोनों हाउस को देखकर क्या पता चलता है हमें? इफ यू सी दीज टू हाउस, जो पहला हाउस है दैट अपीयर्स टू बी डेड। और लोग, अगर मैं पूछूं आपको कौन से घर में लोग रहते, तो द सेकंड हाउस जो क्लीन है, जो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, उसमें लोग रहते हैं। यू कैन से दैट। ओके, सो ये जो वर्ल्ड है, ये यूनिवर्स है, देख सकते हैं दिस वर्ल्ड इज एक्टिव। ये ऐसा डेड पड़ा हुआ नहीं है ना, ये एक्टिव है। सो मेनी एनिमल्स, सो मेनी plants, so many different kind of species of creatures are there in this world. Sun is rising, sun is setting, rains are coming, so many different kind of things are happening. All these things suggest that somebody is there who is maintaining it. मूवमेंट्स है, एक्शंस है, एक्टिविटीज हो रही है, तो कोई तो है जो इसको मेंटेन कर रहा है। ओके, इफ यू टेक अ पेपर एंड पुट सम आयन फीलिंग्स, एक पेपर के ऊपर हम कुछ आयन के फीलिंग्स डालते हैं और नीचे से हम मैग्नेट घुमाते हैं, तो ऊपर से क्या लगता है, वो आयन फीलिंग्स घूम रहे। ये एक्सपेरिमेंट किया होगा सम ऑफ योर टीचर्स। ओके, सो आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा या देखा होगा, बच्चों को करवाया होगा। तो नीचे मैग्नेट मूव कर रहा है। सिमिलरली द मूवमेंट्स ऑफ मेनी थिंग्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, वी डोंट नो हु इज द मास्टर बिहाइंड, हु इज कॉजिंग दीज मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड। कौन है वो मास्टर जो कर रहा है? एक once a mother was walking with small boy and the boy said, मम्मी मम्मी, ये जो पपेट है, पपेट शो चालू था, ठीक है, पपेट है, ये पपेट खुद से ही करता है क्या ऐसा डांस? मम्मी बोलती नहीं बेटा, वो कोई तो ऊपर पपेटियर है जो उसको डांस करवाता है। पपेटियर मेक्स द पपेट डांस। सिमिलरली इस वर्ल्ड में भी ये चीजें होती है। इस वर्ल्ड में भी जो चीजें हो रही है, सनसेट और सनराइज जो मैं बोल रहा हूँ, मून राइज हो रहा है, मून सेट होता है ना, ये सारी चीजें जो होती है, या सीजन में सीजन्स, अलग अलग सीजन होते हैं, वाटर जा रहा है आ रहा है, वाटर के क्लाउड्स आ रहे हैं, रेन हो रहा है, ये सब। सो ऑल दिस थिंग्स दे आर बीन गवर्न्ड बाय समबडी। ठीक है, वी कॉल आवर यूनिवर्स एज कॉस्मोस, बोलते हैं हम इसको कॉस्मोस। और कॉस्मोस का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, तो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका डेफिनेशन कॉस्मोस का क्या है कि इट इज और इट इज हार्मोनियस यूनिवर्स। कॉस्मोस का मीनिंग होता है हार्मोनियस, सिस्टमैटिकली ऑर्डर्ड यूनिवर्स। ये कॉस्मोस का डेफिनेशन होता है अगर हम पूछा जाए। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉस्मोस। तो हमारा जो ये यूनिवर्स है, ये सिस्टमेटिकली क्या है, एक ऑर्डर में कोई तो रन कर रहा है, इस प्रकार का हमारा यूनिवर्स है। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस। ये तो मैं एक अप्रोच ले रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट देर आर मेनी वेरियस टाइप ऑफ अप्रोच, लाइक टीलियोलॉजिकल अप्रोच एक होता है जो हम अभी देख रहे हैं, हीनोलॉजिकल अप्रोच, कॉस्मोलॉजिकल अप्रोच, then there is ontological approach. So many different kind of approaches are there to understand that some creator is there behind this universe. जैसे cosmological approach क्या होता है कि मेरे फादर है, उनके कोई फादर होंगे, उनके कोई फादर, उनके कोई फादर, सो फादर फादर फादर। तो क्या ये लास्ट में किसी पर्सन तक नहीं आएगा क्या, या फिर ये किसी पत्थर पे जाके रुक जाएगा, है ना? One Swami, he told, one boy was telling, we came from monkeys, we came from monkeys. This Swami said, your father might have come from monkeys. अब हमारे फादर तो ह्यूमंस से आए, करेक्ट? सो ये होता है कॉस्मोलॉजिकल अप्रोच। हियर विल बी सीइंग टेलियोलॉजिकल अप्रोच। एक हीनोलॉजिकल अप्रोच होता है, दैट व्हाट इट सेज इज कि जब बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका एक सिंगल सुप्रीम होता है, ट्रायंगल होता है इस वर्ल्ड में। हीनोलॉजिकल अप्रोच में गॉड को प्रूव करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कई सारे टीचर्स होते हैं, उनके ऊपर एक प्रिंसिपल होता है, समझे? कई सारे मैनेजर्स होते हैं, उनके ऊपर एक सीईओ होता है। कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर होता है, करेक्ट? ये सारे, दिस इज कॉल्ड हीनोलॉजिकल अप्रोच। सो ये सारे अप्रोचेस से हम गॉड को प्रूव कर सकते हैं, या वी कैन डिस्कस अबाउट गॉड। हम एक टीलियोलॉजिकल अप्रोच हम देखने वाले हैं, जहां पे हम नेचुरल, एक हमारे आजू बाजू वाला वर्ल्ड है, इसको देख के हम सीखेंगे कि वेदर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, कॉस्मोस के पीछे कोई गॉड होगा या नहीं होगा, ये हम देखेंगे। तो currently I am considering that you all who are watching or seeing this video,
none of you believes in God. Okay, ऐसे मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, तभी मैं इस टॉपिक पे बोल पाऊंगा। नहीं तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सभी लोग भक्त हैं भगवान के और आप सबको पूरा के पूरा फेथ है, देन आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, है ना। सो आई विल कंसिडर एज इफ you are neutral person, because if somebody is atheist, that is a totally different condition. Atheist doesn't want to believe. Atheist, not theist, नास्तिक, है ना, doesn't want to become आस्तिक, पहले से ही कंक्लूजन निकाल के रखा है कि I don't want to believe in God, then for such a person it is difficult, हम उसके साथ सर फोड़ के कोई फायदा नहीं। I believe that those who believe, those who want to believe, or those who are neutral, at least we can tell them about God, but then those who are totally atheist, because they play with science, हम भी science से देखेंगे, but science is not a tool to understand God। आज हम साइंस देखने वाले, साइंटिफिकली विल प्रूव, बट स्टिल if you consider science is not the exact tool by which we can understand God, or for which, using which we should understand God, because science नेचुरलिस्टिक वे से नेचर को देखता है, हर चीज को नेचर के हिसाब से देखता है कि नेचर में ये चीज है, उस पर से हम क्या प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिसीज आता है, वो डिसीज को नेचर में क्या क्या ऑप्शंस है, किस तरह से नेचर क्या क्या देता है, उस हिसाब से वो सोल्यूशन देता है। साइंस किसी हायर मिस्टीरियस या अप्रोच, या फिर जहां एक हम बोलेंगे नेचर के जो एलिमेंट्स है, नेचर की जो चीजें हैं, इनको छोड़कर कोई चीज के बारे में साइंस कभी सोच ही नहीं सकता, बिकॉज साइंस में सारा एलिमेंट्स मैटर, और यही सब चीजों से हम कंक्लूजन पे आते हैं। करेक्ट। सो साइंस इज नॉट द एग्जैक्ट टूल टू अंडरस्टैंड गॉड। ओके, सो सिमिलरली, क्या ऐसा कोई गॉड हो सकता है क्या, जो इतने सारे जो प्लैनेट्स है, ये सारे प्लैनेट्स अलग अलग जगह पर, अलग अलग उनके रूट में सब बराबर लगे हुए, क्या हम कभी ऐसा बोल सकते हैं कि कोई गॉड है? ये टेलीलॉजिकल अप्रोच है जो हम देखने वाले हैं। ओके, सो जस्ट इमेजिन देयर आर सर्टेन थिंग्स इन दिस वर्ल्ड जो हम देखते हैं नॉर्मली, जैसे कोई आर्ट है। ओके, आर्ट है, तो आर्ट देखकर हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि किसने इसको बनाया है। जैसे आप लोगों को अगर पता होगा, पेंटिंग, कौन सा पेंटिंग, मोनालिसा का पेंटिंग, है ना। who can anybody tell me who is the painter who did that no painting, मोनालिसा का किसने बनाया था? एनीबडी ऑफ यू, कोई लिखेगा चैट बॉक्स में। यस, डज एनीबडी नो मोनालिसा पेंटिंग किसने ये किया था, बनाया था? यस, एनीबडी, कोई है यहाँ? Nobody knows. Okay, I will tell you. It was Leonardo da Vinci. He was the person। बहुत पावर, बहुत सुंदर पेंटिंग है, आप देखेंगे अच्छे से उसको तो वो लगता है, स्माइल भी कर रही है, ऐसा लगता है शी इज ग्रेव आल्सो, फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस यू विल सी सिमिलर थिंग्स। सो वेरी नाइस पेंटिंग। सो ऐसा कोई पेंटिंग है जो किसी ने बनाया है, हम उस पेंटर का पूछते हैं नाम कि हु मेड इट, करेक्ट। बट देन दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स आल्सो समबडी हैज मेड, तो उसके बारे में हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि ये यूनिवर्स किसने बनाया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, हम छोटे बच्चे को वंस वी गेव some children, we gave activity of making a paper rose, पेपर से रोज बनाने का एक्टिविटी दिया था। बच्चे बना रहे थे पेपर का रोज वगैरह सब बनाया, तो फिर उसके बाद देन आई यूज्ड टू टेक एवरी रोज एंड आई सेड who made this, he said sir I made this, Sumit, very good Sumit, who made this, Neha, very good Neha, like that. So different roses they have made. Then what I did was I brought a real rose and then I asked them who made this, and they said sir, plant made this, or it came by its own. I said okay, plant made this, okay, such delicate design and smell and all these things, do you think that there is some brain behind this, who gave this brain to the plant to make a rose like that, like this actually we teach students. So many teachers are here. If you because when we speak of science, when we speak of stories and different kind of things, or even if we speak of history, civics, geography, or paintings, or art, or whatever, if we can somehow or other connect all the things to God, like I told you experiment of iron, feelings, and magnet.
We do that experiment in science. If you can just say similarly, बच्चों ये जो आप देख रहे हैं इसी की तरह भगवान भी, गॉड भी है इस वर्ल्ड में, जो ये वर्ल्ड को कोऑर्डिनेट करते हैं। हम क्या करते हैं, वी जस्ट टेल देम, है ना, क्या हो रहा है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, है ना, साइंस बिहाइंड वाटर इवेपोरेटिंग, गोइंग अप, यू नो, एंड बिकमिंग क्लाउड्स, कंडेंसेशन होता है, डीकंडेंसेशन होता है पानी। बट देन इफ यू जस्ट ऐड छोटा सा चीज of God there. God has arranged such nice system for us that the salty water becomes pure water and we are getting it. अगर ये थोड़ा सा ऐड कर देना, so our education will become value education. उसमें value आ जाता है. Otherwise ये education जो हम दे रहे हैं without adding value, value means G for God, है ना, that God, अगर without adding value to that education, this education only takes people towards more and more misery. How? People will become doctor, but then they will take out kidneys of their patients because they don't have God, they don't have values in their life. God brings value. Where, what is the source of light? We say sun. Sun is the source of light in this world. Similarly, what is the source of value? Please believe me, it is God, it is scriptures, it is religion. That's why our world is becoming more and more criminalized, or people are becoming more criminals, more restless, people are becoming more stressed, more miseries are there because people are going away from God. You can check out our history, you will see, you can check out about, you know, how people used to live earlier and how they are living now. Just last 100-200 years के पहले वाला देखिए, because India was, you know, under the rule of Mughals, then Britishers, and then suffered. India suffered, yes. But then if you see the culture before that, how the Vedic people used to live, they lived very happily, satisfied life, which was the center of the life was God. So we have to understand this. So let us go ahead in our in discussing about proof of God. Okay. So different kind of arts are there. Somebody has made it. Okay. Then there is creation. Okay. And then somebody has created it. हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्री कॉल्ड एज सेकोआ ट्री. आई विल जस्ट शो यू द ट्री. आपको बताता हूँ, आपको पता चलेगा कितना बड़ा ट्री होता है. ये ट्री है. जस्ट सी. ओके. दीज आर द सेकोआ सीड्स. ये सेकोआ एक ट्री है जो कि रेडवुड ट्रीज है. अगर आपको पता होगा तो बिगेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड, सबसे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक रहते हैं. और उसका एक सीड है. आप ऊपर स्केल भी देख सकते हैं, तो उसका साइज देख लीजिए आप. एक या मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर के इतना उसका साइज है. ठीक है. बट देन हाउ मच डज दिस सीड ग्रोज, देखेंगे आप. ये सीड ग्रो होके कितना बड़ा ट्री बनता है, आप जस्ट देख सकते हैं. सी द जायंट ट्री विच कम्स आउट. इतना बड़ा ट्री है. ओके. जायंट सेकोआ ट्री. ये देखिए ह्यूमंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, फोटो निकाल रहे हैं, सेल्फी सेल्फी निकाल रहे हैं. दिस इज द जायंट ट्री विच कम्स इनटू द स्मॉल पैकेज. जस्ट सी हाउ बिग द ट्रीज आर. इतना बड़ा है कि उसके अंदर से वो क्या कहते हैं, टेम्पो पास होता है उसके अंदर से. तो जायंट ट्री इज, यू नो, पैक्ड इन अ टाइनी सीड. नाउ व्हाट डू यू से, isn't it a miracle? हम एक छोटे से सीड के अंदर अगर जब वो बड़ा वाला ट्री देखना शुरू करेंगे तब हम बिलीव करेंगे गॉड पे. when we'll see it as a miracle, है ना. So that is what one of the proof that, you know, God exists. ओके. सो ये अलग अलग क्रिएशन है. सो इसके पीछे कोई ना कोई होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे स्पाइडर्स है. स्पाइडर का जो वेब होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड वेब बनाता है स्पाइडर. वो वेब इतना बड़ा होता है उसके साइज के हिसाब से. समटाइम्स आप देखेंगे, आई हैव सीन, पूरा के पूरा जो विंडो है स्टार्टिंग से एंड तक स्पाइडर ने पूरा के पूरा विंडो
में अगर बहुत दिन तक वो विंडो बंद रहा या खुला रहा तो उसको अगर टच नहीं किया किसी ने, तो स्पाइडर क्या करता है, पूरा की पूरा विंडो में एक वेब बना देता है। अभी स्पाइडर का साइज देखा गया और वेब देखा गया, वेब का साइज और स्पाइडर का साइज, इट इज टू मच डिफरेंस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, दैट अगर स्पाइडर की जगह अगर ह्यूमन होता उस साइज का और जितना बड़ा वेब उस स्पाइडर ने बनाया, तो उसका मतलब ऐसा है कि एक ह्यूमन ने 50 स्टोरी का बिल्डिंग बना दिया तो कंपैरिजन हो सकता है। स्पाइडर इतना कॉम्प्लिकेटेड वेब बनाता है और उस वेब को इस तरह से बनाता है कि जहां वो स्पाइडर खड़ा होता है उसको वहां पर वाइब्रेशन है, पहले तो वो सेंटर में होता है बराबर, उसका वेट वो वेब ये कर लेता है, ठीक है, वेट को मैनेज कर लेता है वेब। और वेब इस तरह से कि कोई भी अंदर से गया तो अटक जाता है उसमें। राउंड राउंड उसके सर्कल्स देखिए आप वेब के किस तरह से वो अरेंज्ड है। एंड द मटेरियल विथ विच इट मेक्स इट, द मटेरियल इज the strongest material in the on earth, what I heard it, and even it is stronger than steel. सोचिए, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनते हैं वो उसी से बनते हैं, उसी मटेरियल से। तो स्पाइडर वो बनाता है। नाउ जस्ट टेल मी, स्पाइडर को ये इंटेलिजेंस किसने दिया? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हनीबीज। हनीबीज आपको पता है ना, हनीबीज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें मेल हनीबी, फीमेल हनीबी और जो क्वीन है ये होते हैं। हम जब ये पढ़ाते हैं टीचर्स तो उस समय हम ये एग्जांपल्स दे सकते हैं, इसीलिए मैं आई एम गिविंग साइंटिफिक एग्जांपल्स बिकॉज व्हाइल टीचिंग वी कैन गिव ऑल दिस एग्जांपल्स टू स्टूडेंट्स टू इनकलकेट दिस सीड ऑफ फेथ इन गॉड इन देम। हनीबीज होते हैं, आप देखिए हनीबीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली आई वाज हियरिंग एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था जस्ट ऑन बिकॉज ऑफ हिज रिसर्च ऑन हनीबीज। क्या रिसर्च था? तो हनीबीज जो जाते हैं व्हेन दे आर फ्लाइंग, द वर्कर बीज व्हिच आर लाइक ऑल फीमेल्स, ठीक है, क्वीन भी काम नहीं करती, ड्रोन्स भी काम नहीं करते ज्यादा कुछ, जो वर्कर बीज है दे आर डूइंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ द टोटल वो हनी बी में। वर्कर बीज जो जाते हैं दे फ्लाई, दे डांस एक्चुअली, वो एक्शन से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और अलग अलग जगह जा रहे हैं। उनका जो टेल है, जो पीठ है या फिर जो उनका एब्डोमेन से नीचे वाला पार्ट है फीट, उसको वो इस तरह से घुमाते हैं, शोइंग डायरेक्शंस बताने के लिए कि यहाँ पर फ्लावर्स है यहाँ आ जाओ, यहाँ फ्लावर्स नहीं है यहाँ पे मत आओ। हनी बी डांस बोला गया उसको, ओके। देन हनी बीज किस तरह से अपने कोम को ठंडा रखते हैं, हनी कोम को किस तरह से, हनी कोम का स्ट्रक्चर रहता है, एग्स अलग जगह पे, क्वीन अलग जगह पर है, हनी अलग जगह पर है, और इस तरह से पावरफुल उसका स्ट्रक्चर होता है। एक बिजनेस ओनर या फिर एक कोचिंग ओनर या आप कोई आपका कोई 3-4 रूम वाला या 8-10 रूम वाला या कोई आपका बड़ा ऑफिस भी होगा जिसमें 50-100 लोग होंगे, उसको आप इस हनी बी के ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है, माफ कीजिए, जस्ट डोंट गेट हर्ट, बट देन हनी बीज के ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बीज, लाख बोला तो भी चलेगा, थाउजेंड्स ऑफ बीज, हनी बीज आर देयर, all are living together and they all are performing activities together। इतना परफेक्शन, इतना परफेक्शन। हनीबीज को छोड़ो, नेक्स्ट एग्जांपल, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स है, वो इंसेक्ट्स जिस समय फ्लाई करते हैं, जैसे बरसात है, रेनी सीजन के बाद में आप देखेंगे तो हमारे घर के सामने जो लाइट है बाहर से छोटे छोटे इंसेक्ट उसके आजू बाजू पूरा घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम इन दिस मच स्पेस, इतने स्पेस में hundreds of them are roaming around the light and they are not crashing। just imagine, just think about this। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं ना, आप किसी पायलट से मिलिए और पता कीजिए किस तरह से एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, कितना ध्यान देना पड़ता है कि उस रूट पर, उस एरिया से, वहां से कोई दूसरे प्लेन नहीं जा रहे, दे आर दिस कॉमन सेंटर, जहां पे उनका ये है, क्या कहते हैं, दे नो यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, इस अल्टीट्यूड से, उस अल्टीट्यूड से, ये सारा उनको ध्यान में रखना पड़ता है ताकि क्रैश ना हो, ठीक है। कितने एरोप्लेन जाते हैं एक रूट पे? हाउ मेनी? ओनली फ्यू ऑफ देम। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ देम दे आर फ्लाइंग एंड हाउ नाइसली दे लैंड। जस्ट थिंक अबाउट अ मॉस्किटो, मॉस्किटो कितने अच्छे से आपके बॉडी के ऊपर लैंड करता है, अंदर डालता है उसका जो वो सामने वाला ये है, ठीक है, एंड इंजेक्ट्स इट एंड टेक्स द ब्लड, और ही रिलीजेस सलाइवा जो है ना, उससे ऐसा एक
फैक्टर रिलीज होता है जिसकी वजह से यू डोंट फील आल्सो पेन, एंड एज सून एज इट गेट्स आउट देन यू फील पेन. जस्ट इमेजिन व्हाट अ इंटेलिजेंस इट इज. सोचिए आप, जस्ट बिकॉज फेथ इन गॉड, एक मैं ऐसा फेथ नहीं बोल रहा हूँ जो सेंटिमेंटल फेथ है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. और फेथ शुड बी रियल, इट शुड बी फ्रॉम हार्ट, एंड दैट फेथ हमें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. सो क्रिएशन है तो कोई तो क्रिएटर होता है ना. देन हम बोलेंगे कोई अलग अलग चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार है, हम बोलेंगे सम कंपनी, कोई कंपनी ने बनाया है. कोई वॉच है तो कोई कंपनी ने बनाया है. अगर आप मुझे पूछे ये वॉच, आई विल से दिस एंड दिस कंपनी, यू विल से ओके ये कंपनी का है क्या, ओके. बट देन इफ आई से दैट कोई कंपनी ही नहीं है, अपने आप आया है, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस. सिमिलरली ये यूनिवर्स है, ये अपने आप आया है, दैट डजंट मेक एनी सेंस. जैसे छोटा बच्चा है, हाँ, वो एयरपोर्ट पे जाता है, और एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे जाने के बाद जैसे वो गया, एयरपोर्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया. शॉप्स पे या एयरपोर्ट पे या मॉल्स में होता है, यू माइट हैव सीन, यू गो एंड द डोर ओपन्स, देयर इज नोबडी. आप देखेंगे यार किसने खोला, किसने खोला, कोई भी नहीं, कैसे पॉसिबल है. सो ये अपने आप हो रहा है. बट ये क्या ही अपने आप होता है? नहीं, बहुत सारे सेंसर्स है ना. कहीं पे एयरपोर्ट पे देर देर पानी, वाटर का जो ड्रिंकिंग वाटर का जो फैसिलिटी है तो वहां पे सेंसर है, या फिर हैंड वॉश का जो फैसिलिटी वहां पे सेंसर है. यू जस्ट पुट योर हैंड बिलो द टैप एंड वाटर विल कम. सो इज इट लाइक हम उसको ऑटोमेटिक बोलते हैं, बट एक्चुअली इज इट दैट नोबडी हैज डिजाइन्ड इट? नहीं, somebody has designed. दोनों तरफ से सेंसर है. वो सेंसर्स को अगर आपने ब्रेक किया सिग्नल को तो पानी आता है. सो जो चीजें हो रही है, somebody has done it. आप सपोज आप दिन भर काम करके आपने 10 काउंसलिंग किया आज, और पूरा 10 तो होता नहीं है, 2 काउंसलिंग से दिमाग पूरा उठ जाता है, ठीक है. और दोज आर टीचर्स, यू माइट हैव टेकन 4-5 क्लासेस इन द डे, 5-6-7-8 क्लासेस, 10 क्लासेस, 10 पीरियड्स आपने ले लिए, थक गए पूरा, और आज घर पे गए आप, एंड यू गो होम एंड यू सी दैट घर पे आपको बहुत भूख लगी है, और घर पे जाके देखेंगे तो टेबल पर आपको जो अच्छा लगता है खाना सब कुछ बना के रखा हुआ है. Now, if I ask you, this food, how it came there? And if you say, I was hungry, and thus it came there, isn't it foolish? No, the mother made it, and she kept it there ready for us, mother or wife or whoever. No. So ये जो हो रहा है ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ये बाई चांस थ्योरी is a foolish theory that we can think about. Nothing happens by chance. बिग बैंग थ्योरी आप सबने सुना, बिग बैंग थ्योरी है ना. क्या होता है बिग बैंग थ्योरी? हाउ दिस यूनिवर्स केम इनटू बिग. बोलते हैं कि देयर वाज अ सिंगल पॉइंट, अनलिमिटेड डेंसिटी है, इन्यूमरेबल टेम्परेचर है, ये है वो है ये वो, एंड दैट पॉइंट इट बस्टेड, वो बस्ट हुआ. और वो बस्ट होने के बाद क्या हुआ, कॉस्मिक डस्ट स्प्रेड हो गया हर तरफ, देन प्लैनेट्स, और वो प्लैनेट्स, और फिर उसके बाद वो प्लैनेट्स के ऊपर अर्थ, उसमें से एक प्लैनेट ठंडा होके अर्थ बना, और अर्थ के ऊपर फिर वो सूप, कौन सा सूप, ऑर्गेनिक सूप, और ये वो उसके अंदर सी के वाटर के अंदर लाइफ फॉर्म हुआ, और ये सब ये सब इट साउंड्स सो चीप, या फिर सो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी. आप बिलीव करें, आप मुझे बताइए, अगर कोई फूटने से या कोई ब्लास्ट होने से कोई चीज बनती हुई क्या आपने कभी देखी है? अगर ऐसा होता तो जो बिल्डर्स होते ना, बिल्डिंग बनाने वाले, वो क्या करते पता है? वो क्या करते, एक बॉम्ब को फोड़ देते, और वो बॉम्ब फूटने के बाद पूरा बिल्डिंग बन जाता. बॉम्ब फोड़ो बिल्डिंग बनाओ कंपनी. ऐसा कभी होता है? इट डजंट हैपन रियली. अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, मैं अपने असाइनमेंट्स किस तरह से लिखता, कि पेपर लेता, पेन लेता, ये सबको एक बॉक्स में रखता, बॉम्ब फोड़ता, और असाइनमेंट्स मेरे सामने. दिस डजंट हैपन इवन इफ यू गिव लैक्स. व्हाट रीजन दे गिव इज, दे गिव लैक्स एंड लैक्स ऑफ इयर्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स, एंड इतना, अरे बाबा इतना मिलियंस ऑफ इयर्स में मिलियंस मिलियंस वर्ड यूज करके, बट दैट डजंट हैपन. वी डोंट सी एनीथिंग लाइक दैट इन दिस वर्ल्ड. एंड दैट्स व्हाई if you read, if you go to net and if you search out, there is no single theory which is universally accepted by all the scientists for the origin of universe. कोई भी, सारे साइंटिस्ट किसी एक थ्योरी को नहीं. there are so many different kind of theories which tell about how the universe came into being. If you see the chapter evolution 12th standard में,
सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में आपको दिखेगा, उसमें वहां पे देयर आर मेनी थियरीज व्हिच आर डिस्कस्ड इन बायोलॉजी, हाउ दिस यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, डिफरेंट पीपल गिव डिफरेंट काइंड ऑफ थियरीज. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो एक्सेप्टेंस, ये थियरीज को उससे ज्यादा इजी है एक्सेप्ट करना, गॉड को एक्सेप्ट करना. ओके, जस्ट बाय सीइंग दिस यूनिवर्स. और कोई हम अलग ऐसा प्रूफ नहीं कर. आई एम नॉट ट्राइंग टू नो ब्रिंग से यू दैट गॉड को सामने लाता हूँ और आपके बॉडी के अंदर शिवरिंग होगा, जादू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब नहीं. हम सिर्फ हम एक नॉर्मल अप्रोच से देख रहे हैं, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं प्लैनेट्स है, all these planets they are revolving around sun, so many different kind of planets. But then क्या कभी कोई प्लैनेट एक दूसरे से कोलाइड हुआ है, क्रैश हो रहे हैं प्लैनेट्स? वी नेवर हर्ड ऑफ क्रैशिंग. अरे ये जो क्या कहते हैं, हमारा सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस होता है, ए जाओ रे आओ रे, स्टे, सिटी बजाना पड़ता है, कई बार सिग्नल्स पैक हो जाते हैं, बट वहां पे एक पर्सन होता है जो उसको कोऑर्डिनेट करता है. तो वहां why we will say, we can, how we can say that the planets are not being governed by somebody, they are not under anybody's jurisdiction. Okay, now I'll tell you a very powerful verse from Bhagavad Gita where Krishna says matta partaram nanyat kinchit asti dhananjaya mai sarvam idam protam sutre mani ganaiva. Krishna says that matta partaram nanyat kinchit asti, there is nobody above me. Okay, and he says mai sarvam idam protam, like you can see this tulsi mala in my neck here. Now this tulsi mala, there are small small beads, but then these beads they are together because there is a nylon thread inside which we cannot see. Now if somebody says where is nylon thread, I cannot see it, it doesn't exist. But now dear sir, see, when there are pearls or when there are no beads are there, they are together, that means there is a nylon thread. If thread is not there, how they are together? Similarly Krishna says matta partaram nanyat kinchit asti dhananjaya mai sarvam idam protam, I am the background of everything. सूत्रे मणि गना युवा, लाइक मणि एक सूत्र है, अंदर का जो थ्रेड है उसके ऊपर किस तरह से मणि लगे हुए हैं. Similarly, God is there who is arranging all the things of this universe which are happening in this orderly universe. Okay, now coming to the next point जो हम सोच सकते हैं is one of the, एक साइंटिफिक अगर कोई बोले तो एक फिबोनाची और फिबोनाची सीक्वेंस होता है. इफ यू सर्च अबाउट इट ऑन नेट आपको पता चलेगा. ये सीक्वेंस क्या बोलता है, ये सीक्वेंस बोलता है कि जैसे 1 1 1 फिर 3 1 1 2 और फिर 3, लाइक दैट एक सीक्वेंस है. साइंटिस्ट फिबोनाची है, ही डिस्कवर्ड दैट. ये सीक्वेंस जो है, जैसे पहले एनी फर्स्ट 2 डिजिट, जो एवरी डिजिट इज एडिशन ऑफ प्रीवियस 2 डिजिट्स, लाइक दैट द सीक्वेंस goes on. He discovered that the same sequence is found in all different things of this world. और उस सीक्वेंस को अगर हम देखा जाए तो वही सीक्वेंस से एक फ्लावर के अंदर भी वही सीक्वेंस होता है, हमारे ये फिंगर में भी वही सीक्वेंस होता है. ये इस तरह से देखा जाए, हमारे जो कार्पल्स मेटाकार्पल्स ये सब होते हैं, ये उसी सीक्वेंस से बने हैं. हमारा हैंड भी देखा गया, हर जगह वो सीक्वेंस दिखता है. ये गैलेक्सी के जो सर्कल्स है, वो सर्कल्स को भी अगर आप वो सर्कल्स के बीच में जो स्क्वायर्स बना के अगर देखेंगे तो सेम सीक्वेंस कम्स. एक सनफ्लावर के अंदर भी देखेंगे तो सेम सीक्वेंस कम्स. When I heard about this, I was mesmerized. We can call it as signature of God. जैसे कोई एक एक्टर होता है, एक्टर नहीं डायरेक्टर होता है, हम मूवी देखते हैं, वो मूवी के अंदर हम बता देते हैं ये मूवी ये डायरेक्टर ने बनाया होगा. क्यों? क्योंकि कुछ डायरेक्टर है वो सिर्फ रोमांटिक सीन्स ही डालते हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवीज बनाते हैं. कुछ डायरेक्टर है जो हॉरर मूवीज बनाते हैं, बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज. करेक्ट. सिमिलरली वो डायरेक्टर का जैसे हमें किसी मूवी में उसका ये मिलता है, इम्प्रिंट मिलता है, सिमिलरली इस वर्ल्ड में भी हमें गॉड का एक प्रिंट मिलना चाहिए ना, हर जगह पे एक सिग्नेचर. आई हैव मेड इट. So that precise signature, you can just search about it later. आप इसके बारे में सर्च करते फिबोनाची सीरीज, how it is, किस तरह से वो है, आप उसके बारे में, there are many videos, many people can tell you about that. So God has designed this world in that way. That is signature of God.
Then there are many laws in the world. इतने सारे अलग अलग लॉ है इस वर्ल्ड में. लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये लॉ वो लॉ, हर चीज के लॉ है. इफ वी जस्ट थिंक अबाउट इट माइन्यूटली, लॉ है तो लॉ मेकर होना चाहिए. जैसे मैं इस पेन को मैं ऐसे थ्रो करता हूँ और कैच करता हूँ, थ्रो किया तो ये नीचे गिर रहा है पेन. क्वेश्चन आना चाहिए कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है. हु हैज मेड दिस लॉ? somebody should make this law. क्रिकेट के लॉज है ना. क्रिकेट का अभी गली में हम क्रिकेट खेलते हैं, गली में क्रिकेट खेलते तो उसका लॉ क्या होता है? एक टप्पा आउट, है ना. और ये घर के बाहर गया तो आउट है. अरे घर के बाहर गया तो मिलना चाहिए, लेकिन हमने रूल बना दिया घर के बाहर गया तो आउट है. ठीक है. और क्या कहते हैं उसको, ये नाली के पार, नाली को क्रॉस किया तो 4, नाली को डायरेक्ट क्रॉस किया तो 5, 6, 6 रन पकड़ेंगे. इस प्रकार के रूल बनाते हैं गली क्रिकेट के. करेक्ट. फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसके अलग रूल्स होते हैं. इस प्रकार से आउट है, उस प्रकार से आउट है. करंटली देयर आर सो मेनी रूल्स. T20 वगैरह में प्रीवियसली 10 इयर्स बिफोर रूल्स अलग थे, 10-15 साल पहले. अभी इतने सारे रूल्स ऐड हो चुके हैं. सो देयर आर डिफरेंट रूल्स व्हिच आर मेड बाय इंडियन मेडिकल और इंडियन क्रिकेट काउंसिल, है ना, ICC और BCC, वॉट एवर इट इज. ये इसी तरह हम देख सकते हैं इस वर्ल्ड के भी रूल्स है जो बनाए हुए हैं. मैं आपको बताता हूँ कुछ रूल्स which everybody of us are undergoing, but then we are unknown to them. Okay, for example, we are taking birth and we will surely die. ये rule है. Nobody can say that I will live forever. Nobody. There is another rule. We all, everybody gets deceased. ये भी rule है. It is just matter of time. Whenever our time comes to die, some disease will come and it will take the credit. Cancer will come, बोलेगा इसकी जान तो मैं लूंगा. Some disease will come and that disease will take credit. But then disease will come. Another law of this world, what? Old age. Everybody of us is growing old. Even if there is 5-year old boy, we call him 5-year old. है ना. हम पूछते हैं how old are you? He says 5-year old. So the old word is there even if he is 5-year old or 30, 40, 50-year old person like all of us. Just think about this. So we are all getting old. So these are rules of this world. So if there is law, there is lawmaker. Somebody has might have planned all these things, correct? And then because of our previous classes, we know that the soul with his karma, he gets body, and then he leaves the body and he gets another body. Like that, he goes on taking different kind of bodies depending on the different karmas. So if anybody of you has not heard the previous classes, I will request you to kindly go through the previous sessions also, because they are very important and we discussed thoroughly about karma, about soul, and about mind and all these things. हमने सब कुछ देखा. So it is said that karmana daiva netrena, the karma that we get, whatever actions we had done, it is under the supervision. Karmana daiva daiva, it is under the supervision of somebody, a supervision of God, we can say. That happens. Then if we go on proving, so how we should see all these proofs? We should see all these proofs to be just some glimpses of God. But when we go on thinking that the world is made by God, everything is made by God, everything happening in my life is also under His supervision, then actually we understand God in more depth. Why spiritualists, they go to forest or they perform spiritual activities? क्यों करते हैं सब लोग? Because कल हमने डिस्कस किया था कर्मा वाला, they want to reduce the karma, है ना. And the second thing is they want to attain God, they want to understand God deeply. And take my words, if we understand more about ourselves, we understand more about God also. The more we understand God, the more we understand ourselves, and the more we realize ourselves, the more we realize God. Both are self-realization and God realization. Both of the things go hand in hand. So in this world also, if we realize this world is made by God, and this everything, whatever is happening, nothing is happening by chance. Now I'll just discuss about
Darwin's theory also. Let us touch it also, because scientific यहाँ teachers है, and we have to talk to students many times. So this Darwin's theory is also very important to talk about. What Darwin says is that we have come from monkeys. आपने सुना होगा, और हम इसको blindly believe कर देते हैं. But then क्या हमने कभी सोचा है कि ये सही है गलत है? Darwin's theory is proved by many scientists that it is wrong, it is unacceptable, and in many countries it is not taught. सिखाते नहीं है, मगर हमारे भारत में, मेरा भारत महान, अभी भी बच्चों को पढ़ाया जाता है डार्विन्स थ्योरी। आप सोचिए कैसे हम बिलीव कर सकते हैं कि मंकी से ह्यूमंस आए हैं। हमारे पिताजी ह्यूमन है, उनके पिताजी ह्यूमन है, उनके पिताजी ह्यूमन है, उनके पिताजी ह्यूमन है, मंकी कहाँ आया? ओके, नाउ सपोज अगर मंकी से आते तो कुछ तो चीज कंटिन्यू होता मंकी का, जैसे मंकी का पूंछ रहता था, मंकी के कुछ तो पार्ट हमारे बॉडी में कंटिन्यू होते थे, वो भी नहीं है। ओके ठीक है, अब अगर सपोज हम मंकी से आते तो मंकी पूरा की पूरा क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ ह्यूमन में? व्हाई देयर आर मंकी स्टिल अवेलेबल करंटली एंड ह्यूमंस आर आल्सो स्टिल अवेलेबल? ओके ठीक है, इफ यू बिलीव मंकीज में भी अलग अलग कैटेगरी थे, एंड एप मैन और ये मैन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, एंड देन दे गॉट कन्वर्ट ड्रायोपिथिकस एंड होमो पिथिकस एंड होमो हैबिलिस एंड लाइक दैट, इफ यू से ओके, वो कंसीडर करते हैं। ओके वैसा, देन आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स क्या बताते हैं पता है? कि इवन मिलियन ईयर अगो ह्यूमंस एंड मंकीज दोनों के स्कल जमीन में मिले हैं। अब आप बताइए, अकॉर्डिंग टू डार्विन इतने साल पहले ना तो मंकी था ना तो ह्यूमन थे, उस समय श्रीव्स और ऐसे चूहे जैसे ऑर्गेनिजम्स थे, जो कि आगे जाके बड़े और मंकीज में कन्वर्ट हुए। अभी वो तो थ्योरी पूरा की पूरा फ्लैट है ना, ये रिसर्च से। ये कैसे रिसर्च, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कैसा होता है? जैसे आप जमीन के नीचे अगर जाते हैं थोड़ा थोड़ा, जितना नीचे आप जाएंगे और वहां पे आपको कोई चीज मिलता है, वो चीज उतना ही पुराना है। जैसे आपको जमीन के नीचे अगर कोई चीज मिला 10 फीट पे मिलता है, या 10 फीट पे मिला, तो सपोज हम बोलेंगे वो 10 साल पुराना है, फॉर एग्जाम्पल। एग्जैक्ट वैल्यू आई डोंट नो, जस्ट आई एम टेलिंग। अगर वो 100 मीटर अंदर मिले तो हम बोलेंगे 10,000 साल पुराना है। अगर वो 500 मीटर अंदर मिलता है तो हम बोलेंगे इतना, वॉट एवर इट इज, 1 लाख साल पुराना है, लाइक दैट। सो अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट फाउंड आउट मंकी और ह्यूमंस दोनों के बॉडी के जो ये है, क्या कहते हैं उसको, हम बोन्स है, वो मिले हुए हैं lakhs of years before. Now Darwin's theory is rejected by this just one example, and there are so many researches. If you just search about it, आपको मिलेगा Darwin's theory किस तरह से acceptable नहीं है। अरे इतना, when I teach, I used to teach, I used to laugh so much. I never taught students Darwin's theory and asked them to not have faith in God. I actually taught them Darwin's theory, but at the same time I told all this is rubbish. ये पढ़ाना नहीं चाहिए। You know what Darwin's theory tells about giraffes? क्या बोलते हैं जिराफ कैसे आया? जिराफ, जिराफ नहीं, सॉरी, जिराफ, हाँ जिराफ, जिराफ क्या है? ऐसे डियर टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ऊपर का फ्रूट्स खाना चालू किए, ऊपर के लीव्स खाना चालू किए, और उनका जो नेक है वो थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होके वो बड़ा हो गया, एंड इट बिकेम जिराफ। How can you believe on this rubbish, explanation? Sorry for words which I am using, but then spontaneously these words are coming. हम कैसे believe कर सकते हैं इसके ऊपर कि ये कितना कितना imaginary है, कि ऐसे किसी का, ये स्टोरीज में होता है कि नेक बढ़ गया, आफ्टर thousands of years नेक बढ़ गया। But if you see Bible, if you see Quran, if you see Gita, God created the world and it was as it is. He created all the species and it was everything done together and all are existing from lakhs of years. ऐसा नहीं कि एक आया उसके बाद दूसरा, उससे तीसरा, उससे तीसरा। ये इवोल्यूशन नहीं। इवोल्यूशन कौन सा इवोल्यूशन सही है पता है? एक बॉडी मिलता है सोल को, उसके बाद उसको दूसरा बॉडी मिलता है, उसके बाद तीसरा बॉडी मिलता है, ये इवोल्यूशन चलेगा। बट ये इवोल्यूशन नहीं कि जहां पे एक एनिमल है वो चेंज हो रहा है दूसरे एनिमल में। So many things are there. Darwin says जो पोलर बियर है उसका कन्वर्जन वेल में हो गया। पोलर बियर का कन्वर्जन वेल में हो गया, कैसे एक्सेप्ट करेंगे आप? बोलते कि पानी के अंदर पोलर बियर जाता था, उस फिश को खाता था, उस फिश को खाने के लिए वो जाता था, और उस तरह से वैसे करते करते मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद में उसके लिम्स ये हो गए, वो हो गए, उसका बॉडी बढ़ गया, एंड पोलर बियर गॉट कन्वर्टेड इनटू वेल। बाप रे, कैसे कैसे बिलीव करेंगे हम? सो बिकॉज हमें बचपन से सिखाया गया, एंड क्या होता है पता है, हमें सिखाया गया और हम भी बच्चों को वही सिखाते हैं। सेम इज गेटिंग कैरिड ऑन एंड वी आर मेकिंग नेक्स्ट जनरेशन, नो
साइंस पे फेथ वाली जनरेशन बट नॉट हैविंग फेथ ऑन गॉड, अथिस्ट हम ही बना रहे हैं। टीचर्स का, काउंसलर्स का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैं whenever I counsel somebody or whenever I teach to students, I try to give add value to that education in the form of examples of God, all these scientific examples. साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन साइंस के साथ में ये वाला प्रूफ है वो भी पढ़ाना बहुत जरूरी है ना। और जब हमें ये पता चलता है that God exists by all these examples जो हमने देखा, हमें we have to accept some spiritual part in our life. Because when we understand God exists, so what I should do? See, we discussed, if I am soul, then I should be part of somebody who is the super soul. And that super soul is God. And that God, we have to search out in our life. Upanishads, Vedic text say, Vedanta Sutra says, Athato Brahma Jigyasa. इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, Therefore inquire about God. इतना लाइफ दे दिया है, इसके बाद एटलीस्ट अभी तो इंक्वायर करो गॉड के बारे में। इतना जिंदगी में झटके खाए हैं, थक गए हैं, ऐसा समझा है वर्ल्ड सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा सोच के चले हैं और दुखी है इस वर्ल्ड में। नाउ एटलीस्ट इंक्वायर अबाउट गॉड, लाइक दैट। So we have to inquire about God. Many people will ask you so many different things, they will challenge you, but it is very practical। अगर आप देखेंगे इस वर्ल्ड में इजीली आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। Some examples like I gave you, water ऊपर जा रहा है, इधर आ रहा है, somebody has made that arrangement, है ना। ऐसे ही कैसे होता है, like for example हमारा body है, that is also not fully in our control। one boy challenged me in class, he said, sir can you prove God, that God exists? यहाँ पे मुझे prove करके बताओ, यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, I will prove you, then but what after that? He said, I will believe in God and I will start some spiritual। I said okay, you will practice whatever your religion is, but practice something। कोई तो spiritual activity start करना है अपने जीवन में। If I prove you here that God exists, he said okay। Then I said, can you know, is your heart working? He said yes। I said, is your kidney working? He said yes। I said okay, who is controlling your heart? Who is controlling your kidney? He said, I am controlling। I said, you are controlling? Okay, my dear, can you stop your heart for few seconds? We have got a stethoscope in our lab। लगाएंगे स्टेथोस्कोप और चेक करेंगे क्या तुम अपना हार्ट कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हो। He was quiet। He could not say। He said no sir। Then I said, if you cannot stop something, how can you say that you are, running it or you are controlling it? हम इतने व्हाट वी से डिपेंडेंट है। आपको बताता हूँ, हमारा कब हार्ट रुक सकता है, कब हमें कोई डिसीज पकड़ सकता है, कब हमारा ब्रीदिंग रुक सकता है, कब क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कभी कभी काउंसलिंग होता है और हेडेक करता है बहुत, आपको अगर हुआ होगा तो आई डोंट नो। क्लास होता है लेकिन हेडेक हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। हेडेक हो रहा है, किसी का लंग खराब हो गया या किसी का किडनी खराब हो गया है, या एक बार वो एक पर्सन ही वाज टेलिंग किडनी स्टोन हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं, वो इतना पेन कर रहा है, इतना पेन कर रहा है। देन डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट लो, ये करो वो करो, नो इतना पानी पिया, इतना मेडिसिन दिया, तब जाके वो किडनी स्टोन निकला है। ऑपरेशन तो बात बहुत आगे वाली चीज है, बट देन इतना पेन होता है, व्हाट वी कैन डू? एंड एज आई टोल्ड यू, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। They are like the laws which are been given with this world। So again going to the law of karma that we discussed yesterday's in previous session, हमने देखा law of karma कोई तो कंट्रोल, somebody should be there who has made the law। जैसे gravitation का law है, somebody has made it, God has made the law, this gravitation वाला law। वैसे बहुत सारे laws है इस world में, we have to understand that and go with the laws of God, and that makes our life very peaceful, very happy। Scientifically proven, those who are theists, those who believe in God, those who practice some spirituality, they live longer। उनके हेल्थ अच्छा रहता है, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कम आता है, उनको स्ट्रेस कम आता है, उनके फैमिली अच्छी रहती है। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, आप ये रिसर्च चेक कर सकते हो। बिलीव जो those who are believers and practitioners of spirituality, तो क्यों ना करे, क्यों ना करे। One reporter asked Srila Prabhupada, the founder of ISKCON, okay, he asked, Swamiji, you have given your whole life,
for this, for practicing this Krishna consciousness, or worshipping Krishna, what if at the time of death, you understand that Krishna doesn't exist, God doesn't exist? Abhi Swamiji, Srila Prabhupada, he answered very nicely. He said, okay, ठीक है, I accept it. ठीक है, अगर suppose हमें at the time of death, अगर God exist नहीं करते ऐसा पता चला, then what? Even by the, even we, even if God doesn't exist, but still we have lived our life very nicely. We ate pure foodstuffs, हम बाहर नहीं खाते थे, हम जो भी खाते थे वो भगवान को भोग लगा कर, नैवेद्य लगा के खाते थे. ओके, हमने इतना भगवान के लिए अलग अलग फेस्टिवल साल में, आप जाके देखोगे, तिरुपति टेम्पल जाइए, आप श्रीरंगम टेम्पल जाइए, और यू गो टू बाई चर्च, और यू गो टू एनी मॉस्क, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ईद होता है, ये होता है, फेस्टिवल्स होता है अलग अलग. हिंदू टेम्पल्स में तो बहुत होते हैं, स्पेशली आप साउथ में जाके देखोगे तो देयर इज श्रीरंगम टेम्पल. दे टोल्ड अस 365 डेज में 235 डेज तक कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स है. तो इतना फेस्टिवल हम कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं. अगर आप भारतीय संस्कृति में देखेंगे तो हर फेस्टिवल में अलग अलग बनता है. महाराष्ट्र में बैल पोड़ा होता है, उस पोले को पोड़ी बनता है ना, ये बनाते हैं पूरन पोली. इवन दिवाली में अलग अलग प्रकार के स्वीट्स, लड्डू, कचौरी, ये सब क्या बोलते हैं, अलग अलग चीजें बनती है. फिर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, फिर आप देखेंगे हर हर प्रोग्राम में अलग अलग, जो संक्रांत होती है, संक्रांत में ये बनता है, क्या बोलते हैं, तिल के चीजें बनती है ना. सो श्रील प्रभुपाद सेड, वी मेड सो मेनी थिंग्स एंड वी एंजॉयड एवरीथिंग. वी एंजॉयड अवर लाइफ, वी एट डेली, वी यूज्ड टू डू कीर्तन एंड वी यूज्ड टू डांस. हमने अपना जिंदगी एकदम खुशी में डांसिंग ये वो करते हुए हमने अपना जिंदगी बिताया है. सो हमारा कोई लॉस नहीं हुआ उसमें. बट देन he said very gravely to the reporter, what if at the time of death you realize that God exists? The reporter was shocked, he could not speak anything. So there is no loss that we have in believing God, or on walking on the path of God. So this was the session we discussed today about God, and we are, our time is done. If anybody has any question, we will take that. And again, I thank all of you for coming here. Those who are coming regularly, I am indebted to all of them. I thank you from my heart for coming. Very, very thank you for coming and hearing all these sessions. There are many people who just want to earn money, learn some course, somehow put it into the market and get some money. But this course is not like that. But this course is foundation of all those courses. If we know this, then what counselor we are, what kind of teacher we are, it will give us a different directions. It will give flavor to our teaching. It will give flavor to our personality, and that flavor will be having a long lasting effect. बच्चे आपको, स्टूडेंट्स या आपके क्लाइंट्स है, वो आपको बहुत सालों तक, जिंदगी भर हम बोलेंगे, याद रखेंगे, बिकॉज आपने एक सीड जो है स्पिरिचुअलिटी का उनके हार्ट में डाला था. विद ऑल द थिंग्स व्हाट वी डिस्कस टुडे, अगर ये सारी चीजें अगर हम बच्चों से डिस्कस करते हैं, हमारे टीचिंग में, हमारे काउंसलिंग में जब डालते हैं, हम उनके लाइफ को बहुत पीसफुल बना रहे हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. आई विल ट्राई to answer, or otherwise we will end today's session. Thank you, Gracie madam, for your reply. Okay. Thank you, Krishna sir. Okay, so I think nobody has any questions, so we'll end today's session here itself, and we'll meet again tomorrow. Thank you.